اور جن کی یہ امانت ہے، جن کے کام کو ہم لے کے چل رہے ہیں، وہ ہمارے سرکار دو عالم میرے اور آپ کے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام ہے جو ہم آگے پہنچا رہے ہیں۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کو ہدایت دیتا ہے جو رجوع کرتا ہے۔ تو یہ چند لمحے آپ کو بیٹھنے میں تکلیف تو ہوگی، لیکن اپنے دل کے کان کھول کے ہم نے بیٹھنا ہے، اور اس طرح سے بیٹھنا ہے کہ یہ وقت ہماری زندگیوں کو بدل دے۔ نحمده ونصلي 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 على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ صلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ جی، آج لبنہ نے مجھے کہا کہ ہم نے درس قرآن پہ بات کرنی ہے، ہم قرآن پہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ نے کہا کہ قصیدہ بردہ شریف کی تھوڑی سی فضیلت میں بیان کر دوں، تو میرا خیال ہے آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے اس قصیدہ کے بارے میں کہ یہ کتنا اس امت کے لیے یہ بھی ایک تحفہ ہے، اور کتنے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتی ہوں جن کو اس قصیدہ کے اشعار سے فیض ملا۔ اور اہل سلوک جو ہیں وہ تو اس قصیدہ کے اندر کچھ ایسے اشعار ہیں جن کی ریاضت کرتے ہیں، اور ان اشعار کے ذریعے وہ کون کون سی منازل ہیں۔ یہ بہت مبارک، بہت خوبصورت یہ کلام ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح وہ اتنے بیمار تھے، تو ان کو یہ خواب میں جب انہوں نے یہ قصیدہ پڑھا، یہ ساری آپ لوگ اس کہانی کو جانتے ہوں گے یقیناً، کہ ان کو زیارت ہوئی، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سنایا، اور پھر کس طرح آقا نے ان کو وہ چادر عطا فرمائی، اور جب وہ جاگے تو چادر ان کے پاس تھی، اور وہ بہت بیمار تھے، ان کی بیماری کی شفا ملی۔ اور اس قصیدہ سے آج تک ہم اپنی بیماریوں میں اللہ سے اس کے الفاظ کے واسطے وسیلے سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم شفائیں مانگتے ہیں، اور اللہ شفا دیتا ہے۔ اور اس امت پر یہ بہت بڑا کرم ہے کہ یہ امت رحمت للعالمین کی امت ہے، وہ جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ اور بہت کرم ہے، ابھی جو میں نے قرآن کی آیات پڑھی ان میں اگر ہم اس کے ترجمے میں دیکھیں تو اس میں ایک لفظ آتا ہے نا جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تو ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پچھلوں پہ ڈالنا۔ تو جو پچھلوں کے بوجھ تھے وہ بڑے مشکل تھے، ان کی شریعت بڑی مختلف تھی ہم سے، اور ان کی شریعت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا تو وہ کاٹنا پڑتا تھا، اور عبادت جو ہے صرف عبادت گاہ میں کی جاتی تھی۔ یہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ آپ نے اس زمین پر قدم رکھا تو مٹی پاک ہو، اور پوری زمین جو ہے یہ جائے نماز بنی، جہاں چاہیں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ صرف مٹی پاک نہیں ہوئی بلکہ پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنی۔ پانی نہیں ہے تو ہم تیمم کرتے ہیں نا، اسی مٹی سے کرتے ہیں۔ اور کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، اتنی زیادہ ہم پہ کرم ہوئے۔ پرانے زمانے میں وہ لوگ جب گناہ کرتے تھے، ہم دیکھتے ہیں نا حضرت موسیٰ کی قوم کو جب انہوں نے گناہ کیا تھا، بچڑے کو پوجا تھا، کہ جب انہوں نے لال نافرمانیاں کی تو کیسے ان کے اوپر عذاب آئے۔
اور जब उन्होंने तौबा मांगी तो अल्लाह ने कहा था कि कफारा अदा करो। जिन लोगों ने तर्जुमा पढ़ा है वो जानते होंगे कि किस तरह अपने ही घर के लोगों ने अपने घर के लोगों को कत्ल किया, तो फिर उनकी तौबा कबूल हुई थी। और ये उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज है कि हम इतने बड़े बड़े गुनाह कर लेते हैं और छुप के आंसू बहा लेते हैं, और हमारा रब जो है वो हमें माफ करने में वो गफूरुर रहीम है। और हमारे कुरान में हमें बार बार कहता है कि मैं तौबा को भी कबूल कर। कुरान करीम की आयत है ना कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिन्नों को इसलिए पैदा किया कि वो हमारी इबादत है। तो आज मेरा ख्याल है हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि अल्लाह कहता है कि मैंने तुम लोगों को इसलिए पैदा किया कि तुम मेरी इबादत करो। यही मफहूम है ना इसका। तो इबादत क्या है? कभी हमने सोचा कि इबादत क्या है? कोई बताएगा कि इबादत क्या है? इबादत अल्लाह के अहकाम जी, अल्लाह के अहकाम में जी जी ला लिया अबुद। और इबादत क्या है? इबादत जो फिजिकल इबादत है, बिल्कुल सही इबादत है, बिल्कुल। फिजिकल इबादतें भी तो हम करते हैं ना जो फर्ज की गई, वो कौन कौन सी? ठीक है। फिजिकल इबादतों में सबसे पहले नमाज आ गई ना कलमा पढ़ने के बाद। तो नमाज हम पढ़ते हैं तो अल्लाह कहता है कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, के दूसरे नंबर आ गया। रोजा के बारे में अल्लाह कहता है कि रोजा जो है तुम रोजे तुम पर फर्ज किए गए ताकि तुम लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब हम जहाँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम में से माशाल्लाह सभी 5 नमाजें तो पढ़ते हैं ना, और सब रोजे भी रखते हैं। तो मुझे बताएं कि क्या हम बुराई और बेहयाई से रुकते? दवाई खाई है, असर नहीं करती। रोजे भी हमने कभी नहीं छोड़े। क्या हम तकवा की एक मंजिल भी पा सके? नहीं कर सके ना। तो क्या वजह है? सिर्फ हमने डॉक्टर का नुस्खा ही नहीं पढ़ा हमने कि दवाई जो है अल्लाह तो कह रहा है, कहा पानी अगर पीते हैं हम तो हमारी प्यास बुझती है। अगर हम पानी पिए और प्यास ना बुझे तो प्रॉब्लम है ना। फिर हमें ट्रीटमेंट चाहिए, प्यास नहीं खत्म करनी, फिर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह अगर हम नमाज पढ़ते हैं, हम रोजे भी रख रहे हैं, और नमाज पढ़ने के बाद ना हम बुराई से रुक रहे हैं ना बेहयाई से रुक रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमें पता ही नहीं है। इबादत देखिए, जब हमने नमाज पढ़ी फर्ज अदा हो गया, फर्ज अदा हो गया, रोजा रखा फर्ज अदा हो गया, लेकिन उसका वो समर हम नहीं पा सके जो अल्लाह हमसे चाहता था। इसलिए कि ये हमने सब आदतन कर आदत बना ली, ये करना है करना, मशीन की तरह अंदर नहीं उतरा। अब हमें ये पता चला कि ये जो हमारी इबादत थी, ये दरअसल क्या था, ये आदत बन गई थी। इबादत को क्या बनाना है हमने, मोहब्बत बनाना है। जब इबादत मोहब्बत बन जाती है तो फिर तब्दीली अंदर से शुरू होती है। हमने इस पे काम नहीं,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम हयात मुबारका को देखें ना, हम दीन के काम को ही ले लें तो हमें ये लगता है कि हमने थोड़ा सा कुरान को सीख लिया, थोड़ी सी हम तजवीद हमारी अच्छी हो गई तो हम तो बहुत बड़े मुबल्लग बन गए, ठीक है ना। तो हम कहते हैं हम सारे माशरे को सीधा कर देंगे। हम आका अलैहिस्सलाम की जब हयात मुबारका में निगाह डालते हैं तो आका मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त तक तबलीग का काम नहीं किया था शुरू, जब तक सादक और अमीन उनकी जुबानों से जारी नहीं हो गया था जिनके दरमियान आप रहते थे। तो हमें ये पता चला कि ये सफर अंदर से शुरू होता है, ये अपनी जात का सफर है। नमाज, मेरी नमाज मेरे लिए है। अगर मेरी नमाज मुझे फायदा नहीं दे रही तो इसका मतलब है कि मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, मुझे सीखना है कि मेरी नमाज मुझे कैसे फायदा देगी। अगर मेरे रोजे, मेरी 50 साल उम्र हो गई है, मैं 50 सालों में जब से रोजे फर्ज हुए मैंने कभी कजा नहीं किए, तो मैं अभी तक, मुझे पता ही नहीं तकवा होता क्या, मुझे नहीं पता चला। तो फिर प्रॉब्लम मेरे अंदर है, मुझे अपनी ट्रीटमेंट करवानी है। अल्लाह ताला ने ये जो कुरान हमारे हाथों में दिया है, इसमें अल्लाह ने क्या कहा है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैंने तुम लोगों को इसलिए पैदा किया, अल्लज़ी खलक़ल मौता, कि अल्लाह ने पैदा किया मौत और जिंदगी को, लियब्लुवकुम, ताकि आजमाए तुम्हें। अब गौर करना है, अल्लाह कुरान में बार बार कहता है गौर व फिक्र करो। लुबना ने कहा था कि बाजी आपने कुरान पे बोला है, तो मैंने कहा कुरान पे बोलेंगे, ठीक है ना। तो कुरान तो बार बार कहता है मेरी आयतों पे गौर करो, अफला यतदब्बरून, तुम तदब्बुर क्यों नहीं करते, तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। एक आयत को भी हम पकड़ के अगर उस पर गौर व फिक्र शुरू करें तो मुझे बताएं कि हम कहाँ खड़े, कहाँ खड़े। कुरान तो हमें ये कह रहा है कि तुम्हें इसलिए पैदा किया गया ताकि अल्लाह तुम्हें आजमाए। और छोटी सी आजमाइश आती है हमारे ऊपर, छोटी सी, तो हम कितना वावेला मचाते हैं, कितना वावेला मचाते हैं, बताए मुझे। कितनी नाशुक्री हमारी जुबानों पे शुरू हो जाती है, कितनी चीखों पुकार। हमने निस्बत अपनी उस घराने से बनाई नहीं जिसका साथ हम नमाज में मांग रहे हैं, बनाई है, बताए। उनकी नमाजें कैसी नमाजें थी, कैसी नमाजें थी, उनकी मोहब्बत रसूल कैसी थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का जब हम बात करते हैं तो फिर हमें क्या देखना है कि जो उनसे मोहब्बत करने वाले थे उनकी मोहब्बत का क्या मिला, कैसी जिंदगियां थी उनकी। कि वो खवातीन जा रही हैं और पर्दे के अहकामात उतर रहे हैं तो खवातीन उधर बैठ गई थी और उन्होंने अपने घरों से चादरें मंगवा ली। सुबह से शाम तक हम देखे तो हम तो एक वाली मुजरम ही मुजरम है। हमें तो समझ ही नहीं आएगी कि हम कहाँ से अपनी इस्लाह शुरू करें। हमें तो यही पता नहीं चलेगा कि हमारी गलती कहाँ से शुरू हो रही है। अब तो सिरा पकड़ने में बैठेंगे, हम तो सब कुछ उलझाई बैठे, हमें तो पता ही नहीं है। सूरह मुल्क जो है, हमें कहा गया है ना कि ये कब्र के अजाब से बचाती है। तो मुझे एक दफा किसी ने कहा कि ये सूरत में क्या है ऐसा कि ये कब्र के अजाब से क्यों बचाती है। तो मैंने कहा हम इस पे गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा ना। रोजाना मेरा रात को सोने से पहले अल्लाह ताला याद करवाते हैं कि देखो ये तुम्हारा घर नहीं है, तुमने वापिस आना है मेरे पास, और इधर तुम इम्तिहान देने आए हो। तुम मेरी बात सुने, जब सोने से पहले हमें अल्लाह ये कहे आके कि देखो ये इम्तिहान गाह है, तो सारे दिन में जितनी मुसीबतें हमने काटी थी हमें तो वो बड़ी आसान लगेंगी, लगेंगी ना। क्योंकि हमें पता है कि जिन्होंने इम्तिहान दिए थे उनकी जिंदगियां कैसी, पता है ना हमें साहबा कराम की कैसी जिंदगियां थी। हम जानते हैं ना कि जो इनाम याफ्ता लोग थे उनकी जिंदगियों में क्या था, उनकी जिंदगियों में क्या वो कुछ था जिसके लिए आज हम सारे वजायफ करने के लिए कोई ना कोई ढूंढ रहे हैं कि हमें ऐसा वजीफा मिल जाए, हम उस मकाम पे पहुंचे। कभी हमने कोई मकाम हासिल करने के लिए वजीफा नहीं किया, यह बताएं। अल्लाह को पाने के लिए हम मसले पे नहीं चाहते, ऐसा ही है ना।
ہماری پریورٹیز بدل گئی. ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور اس کے بعد کیا ہے کہ شوہر بھی میرے قدموں میں آ جائے اور بچے بھی فرما بردار لائن میں کھڑے ہوں. ایسے ہی جی چاہتا ہے نا اندر سے, ویسے یہ دل چاہ رہا ہوتا ہے ہمارا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, یہ امتحان ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر. بار بار قرآن کے تو سارے پیغام ہمارے سامنے ہیں. والعصر, قسم کھا کے کہہ رہے, قسم ہے زمانے کی, بے شک انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ جو ایمان عاملوا الصالحات, اور نیک عمل, وتواصوا بالحق, اور حق کے ساتھ کھڑے اور صبر کیا. اب یہ بات ہمیں کیا درس دے رہی ہے, کیا بتا رہی ہے؟ حق کے ساتھ کھڑے ہونا. اور اگلی آیت میں کیا کہہ دیا, اور صبر کیا. اٹ مینس کہ جب بھی ہم حق کا ساتھ دیں گے مشکل آئے گی. حق کا ساتھ دینے میں مشکل آتی ہے, اسی لیے تو ساتھ ہی کہہ دیا کہ صبر کرنا ہوتا ہے نا. ہم کہتے ہیں نا کہ کسی بچے کو بھی ہم باہر بھیجیں, اگر نئی نئی بچے نے ڈرائیونگ شروع کیا تو ہمیں پتہ ہے یہ سڑکیں بڑی, ادھر بہت زیادہ وہ جو ٹریفک ہے, تو ہم بچے کو گاڑی کی چابی دیتے ہی کہتے ہیں نا دھیان سے چلانا, یہاں کی ٹریفک بڑی ہوتا ہے نا. تو ساتھ ہی احتیاطی تدابیر. اب کیا کہا گیا کہ حق کا ساتھ دیا اور جنہوں نے سمجھ. اب مجھے بتائیں کہ آج ہم اپنے ارد گرد دیکھیں یا اپنی ذات کو ہی دیکھیں تو ہر بندہ حق پہ ہے. ہر بندہ حق پہ ہے نا. میں کہوں گی میں حق پہ, رہیلا کہیں گی میں, ہر بندہ کہتا ہے میں ہی حق پہ ہوں. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تم نے سچ والوں کا ساتھ دینا ہے. ایک اور جگہ اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور کہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ سچوں کا ساتھ دو اور پھر صبر بھی کرو. تو ایمان والے جو ہیں, اب وہ تو ایمان لے آئے, اب مومن ہو گئے ہیں, وہ ایمان لا چکے ہیں. ایمان لانے کے بعد ان سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے, حق والوں کا ساتھ دینا ہے, اور تم نے کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. تو اٹ مینس کہ یہ ہمیں پتا چلا کہ جو مسلمان ہے اس کی زندگی کیا ہے. سمجھ آئی مسلمان کی زندگی کیا ہے, کیا ہے بتائیں. آسان نہیں, آسان نہیں. کوئی اتنا کو غلط نہیں, اور اس ٹائم پہ کسی کو تھوڑی سی کسی کو بات بھی بتانے چاہیں تو وہ مجھے غلط کہہ رہا ہے, سب سے بڑا. دیکھیں بات بھی وہی آ گئی نا کہ جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 ایئرز اپنی ذات پہ کام کیا, ذات پر کام کیا, صادق اور امین مشہور ہو گئے, لوگ ان کو صادق اور امین پکارنے لگے, تو پھر آپ دعوت و تبلیغ کے لیے کھڑے ہوئے, پھر کھڑے ہوئے نا. تو اگر ہم دیکھیں تو اپنی ذات پر محنت کرنا بہت مشکل تھا, بہت مشکل. اور اللہ تو کہہ رہا ہے کہ وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اب ہم ادھر بیٹھی ہیں تھوڑی سی خواتین, ہم ارد گرد ڈھونڈیں تو ہم سوچیں کہ اس گروپ میں جتنی خواتین بیٹھی ہیں, میں آپ سے کہوں کہ ان میں سے ایک سچی عورت کو ہم ڈھونڈتے ہیں اور ہم سب اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں. تو مجھے بتائیں کیا ہم ڈھونڈ پائیں گے؟ کیا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. ٹیچر خود بڑی ہنسی ہے, کیا ٹیچر کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دین جو ہے نا, قرآن کی ہم بات تو کرتے ہیں, بٹ قرآن کے اوپر غور و فکر کرنا, تدبر کرنا, اس پہ ہم وقت نہیں لگاتے. قرآن کا ترجمہ بھی پہلے تو یہ تھا نا کہ ریڈنگ ہم کرتے تھے, بہت یہ تھا کہ سب لوگ ریڈنگ کر رہے تھے, اور معاشرے میں کیا تھا, ادب اور احترام تھا. ٹھیک ہے, آج کیا ہوا ہے کہ آج اس وقت جتنا ایک عالم دین کے پاس علم تھا نا, آج ایک بچے کے پاس, ایک اسٹوڈنٹ کے پاس, آپ اپنے بچے سے بات کر کے دیکھ لیں, وہ آپ کو ایسی ایسی دلیلیں دیں گے. ہم سے زیادہ ہمارے بچوں کے پاس علم ہے. تو کیا ہے کہ آج علم کی کوئی کمی نہیں ہے.
آج کس چیز کی کمی ہے بتائیں مجھے؟ آج جو نور معرفت جو ہے نا وہ ختم. اصل چیز جو ہے نا، اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم حق کو پہچان سکیں. آج حق کی پہچان ختم ہو گئی. آج جو کلمہ ہمیں پڑھایا گیا، کلمے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ دیکھیں کلمے کی جب آقا علیہ السلام نے دعوت دی تھی نا، تو آپ نے کیا کہا تھا کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں. تو کتنے لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا؟ وہ پوری کی پوری مکے کی بستی جو آپ کو صادق اور امین کہتی تھی، سب آپ سے بے حد محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے سب لوگ آپ سے. تو سب آپ کے مخالف ہو گئے. کیوں؟ یہ کوئی بڑی بات تھی کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ ان کو پتا تھا کہ یہ کتنی بڑی بات. ان کو پتا تھا اس دور کے ان ناخواندہ وہ جو عرب کے لوگ تھے، وہ اس بات کی آگہی رکھتے تھے کہ یہ اقرار اگر ہم نے کر لیا، کیونکہ وہ منافق نہیں تھے، وہ سچے لوگ تھے. اور جنہوں نے پڑھا انہوں نے گردنیں کٹائی، انہوں نے گھر بار چھوڑا، انہوں نے خون کے رشتے آمنے سامنے آ پوری فل انہوں نے پھر دل سے پڑھا، کیونکہ وہ اس کلمے کے بار کو سمجھتے تھے، اس کا وزن کتنا کہ یہ کلمہ ہمیں کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہمارے اندر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر جو اتنے بڑے بڑے خواہشوں کے بت ہے نا، من مانی، یہی اور کیا چیز ہے جو ہمیں آگے نہیں دیکھنے دیتی؟ خواہش کا بت ہے نا، اندر ہم نے پال کے بٹھایا ہوا ہے، وہ ہمیں آگے نہیں دیکھنے دیتا. تو وہ کیا ہے کہ ہم زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں، بٹ ہم نے اس کے مفہوم کو نہیں سمجھا. جب ہم اس کے مفہوم کو سمجھ لیں تو پھر کلمہ زبان سے ادا کرنے کے بعد زندگی بدل جاتی. ہماری زندگیاں نہیں بدلتی کیونکہ کلمہ ہمارے دلوں میں نہیں ہوتا. ہم جتنا بھی کہیں لا الہ الا اللہ، ہمیں یہ نہیں، اللہ تو کہہ رہا معبود ہے کیا، الہ کیا چیز ہے. پہلے اللہ یہ اقرار کرواتا ہے، نفی کرواتا ہے. اٹ مینس کہ کچھ اندر تھا، کچھ اندر موجود تھا، خواہش کا بت اندر تھا جو ہر وقت اپنی منمانی کرواتا تھا. پھر اللہ نے کہا کہ کوئی معبود سوائے اللہ. پہلے اپنی ذات کی نفی، اس کے بعد پھر سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا اقرار. پہلے ذات کی نفی. اب اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ جب تک ذات کی نفی نہیں ہوگی، ہم امتی کے اس پر مقام کو نہیں پا سکیں گے جس کی ہم سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا. تو ہم اگر کلمے پہ غور و فکر کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی تو ہم امتی ہونے کا جو مقام ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے. کہا گیا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں ان کا درجہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے برابر. ایسے کہہ دیا بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے برابر ہے. ولیوں کا درجہ جو اس جو امت کے جو لوگ ہیں جو اللہ کے مقام پہ چلے جائیں گے فرما برداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کا درجہ اتنا بلند کر دیا گیا. کیوں کیا؟ کیونکہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا اور شریعت مکمل ہو گئی، پیغام مکمل ہو گیا. مکمل پیغام ہے، مکمل پیغام ہمارے پاس موجود ہے. اور اس مکمل پیغام کا جو خلاصہ وہ سارے کا سارا ہمارے پاس انگلیوں کی ٹپ پہ ہے. اپنی خواہش نفس کو اسلام کی یہ ڈیمانڈ، خواہش ختم ہے. اب حکم چلے گا تو اللہ کا چلے گا، اللہ کے سوا نہیں چلے گا کسی کا. ٹھیک ہے. اور محبت میں اولین درجہ جو ہے اطاعت اور فرما برداری میں اولین درجہ ملے گا تو صرف اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے گا. محبت ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، ادب ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، شریعت ہوگی تو ان کی ہوگی. اور تمام رشتے، تمام محبتیں تابع ہو جائیں گی اس محبت کے. اور جب تمام محبتیں اس محبت کے تابع ہو جائیں گی تو مجھے بتائیں کہ پھر زندگی میں دکھ رہ جائے. پھر جو دکھ ہے، پھر انسان اس بات پہ دکھی ہوتا ہے کہ میں اس معیار پہ نہیں ہوں. پھر اس لیے دکھی نہیں ہوتا کہ یہ رشتے مجھے ستا رہے ہیں. پھر دکھ یہ آتا ہے، پھر رونا اس بات پہ آتا ہے کہ ہم اطاعت و
फरमा बरदारी का वो मकाम हासिल नहीं कर सकते। फिर शिकवे के आंसू नहीं आते, फिर नदामत के आंसू आते हैं। तो नादिम, आज आपको कौन नादिम नजर आ रहा है बताएं? हम कभी नादिम होकर रोए हैं अल्लाह के पास? हम तो शिकवों पे रोते हैं, अल्लाह ने तो हमें दुखी बड़े दिए हैं, हमारी जिंदगियों में तो मसले ही बड़े हैं, हमसे तो वो मसले हल ही नहीं हो पा रहे। हम तो नमाजें भी पढ़ते हैं, इतने वजीफे भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं ना हमने, लेकिन क्या है कि हम उस मकाम पे नहीं पहुंच पा रहे। तो वो मकाम हासिल कैसे करें? वो मकाम तो हम कुरान को जब सूरह फातिहा को हम पढ़ते हैं, सूरह फातिहा तो हमें बार बार पढ़नी सिखाई गई है ना, बार बार अल्लाह ने कहा है कि पांच पांच नमाजों में हर रकात में इसके बगैर नमाज पूरी नहीं है। अल्लाह की तारीफ हमने बयान की, उसके बाद हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अल्लाह ने अपना तारुफ करवा दिया, अल्लाह ने अपना तारुफ करवाया कि रहमान हूँ और मैं रहीम हूँ। और अल्लाह ये कहता है कि जब मेरा बंदा मुझसे डरता है तो क्या करता है, वो खौफ में चलता है। जब वो खौफ में इबादत करता है, मेरे सामने खड़ा होता है, फिर वो मुझसे मोहब्बत करने लगता है। क्या है कि ये सफर जो अल्लाह के साथ ताल्लुक का है, ये पहचान से शुरू होता है। जब तक पहचान नहीं होगी हम मोहब्बत नहीं कर सकते। हो सकती है मोहब्बत, बताएं? अभी जो हमने पढ़ा था, अभी जो हमने पढ़ा था, लदी वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नों को इसलिए पैदा किया कि वो हमारी इबादत करे। तो हम इबादत पर गौर कर रहे थे कि इबादत क्या है। इबादत फरमाबरदारी है अल्लाह की, अहकामात है जो हमने बजा लाने हैं। और अगर अहकामात बजा लाने के बाद हमें पता चला कि हमारे अंदर तो वो रिक्वायरमेंट हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं जो अल्लाह हमसे डिमांड कर, जब वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, तो अब हम उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम गौर करेंगे कि हमसे कमी कहाँ पर रही, हम कमी को ढूंढेंगे ना। अगर नमाज जो है वो हमें बेहयाई और बुराई के कामों से नहीं रोक रही, तो फिर हमने जाके चेक करना है अपने आप को कि कहाँ पानी कहाँ मरा है। वो कहते हैं ना, सेम आ रही है तो हमने देखना पानी कहाँ मरा है। तो वो पानी कहाँ मरा है, हमें ये पता चला कि हम अबदियत के उस मकाम पर नहीं पहुंचे, हमने अल्लाह को पहचाना नहीं। क्योंकि अल्लाह ये कहता है कि जब जब मेरा बंदा मुझे पहचान लेता है, तो फिर वो मुझसे मोहब्बत करने लगता है। पहचाने बिना मोहब्बत हो सकती है बताएं? पहचाने बिना मोहब्बत नहीं हो सकती। मोहब्बत के लिए पहचान जरूरी है। और जब हम कुरान खोलते हैं, हम अल्लाह का तारुफ देखते हैं, अल्लाह कहता है कि तमाम तारीफें जो है वो मेरे लिए हैं। फिर अल्लाह कहता है कि मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ। फिर अल्लाह कहता है मालिक यौम, मैं कयामत के दिन का मालिक हूँ। अब अल्लाह ने जब ये कह दिया कि मैं मालिक हूँ, तो मालिक का तो जो मन चाहे वो करे। अब मालिक का जी चाहे तो हमारी बातें कबूल कर ले, मालिक का जी चाहे तो वही बातें हमारे मुंह पे दे, हमारे ना कबूल करे। हमें तो नहीं पता ना, हम तो किसी बात पे मालिक के आगे तो हम बहस कर ही नहीं सकते। हमें पता ही नहीं हमारे अमाल इस म्यार के हैं कि नहीं। अब मालिक के म्यार पे हमारा ईमान, हमारी इबादतें नहीं है, तो फिर बताएं हमारे पास क्या है? हमारी ही कुछ ऐसी नीयतों में खोट आ गया। अल्लाह कहता है कि क्यामत वाले दिन जो है अमाल तोले जाएंगे, गिने नहीं जाएंगे। अब नेकियां तो हमने गिन गिन के की होती है, बोरियां तो हमने बड़ी भरी हुई है ना। इतने उम्रे हमने किए हैं, इतने हज हमने किए हैं, इतने कुरान हमने खत्म किए हैं, नेकियों की बोरियां हमने बहुत भरी हुई हैं। तो अब क्या है कि वो सारी की सारी बोरियां, कोई एक नियत का वबाल पड़ गया, बदनीयती आ गई थी कोई, तो वो तो तिनके से भी हल्की हो गई। तो सब गया। तो जब हमें ये तारुफ अल्लाह का हुआ कि वो तो मालिक है, वो जो चाहे करे और मेरा तो म्यार ही वो नहीं है, तो फिर दिल पे हैबत आ जाती है, दिल पे खौफ आने लगता है, दिल पे डर आने लगता है। फिर हम कहते हैं ला इया का ना, हम तेरी इबादत करते हैं, इया का नस्ताइन, और तू हमें सीधा रास्ता। फिर हम सरेंडर कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, हम कहते हैं नहीं, हमसे नहीं, हम तेरी मदद चाहते हैं, तू हमें दिखा। इहदिनस सिरातल, कहते हैं ना, इस इहदिनस सिरातल की तफसीर जो उलमा कराम करते हैं, कहते हैं ये ऐसा रास्ता है, एक इतनी लंबा रास्ता है जिसपे 100 दरवाजे। इस रास्ते पे भी हम चल पड़े तो बार 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 शैतान जो है हमें कभी इधर से वर्गलाते हैं, कभी उधर से वर्गलाते हैं।
यानी मुसलसल इंसान जो है ये तो है ही इम्तिहान है। तो क्या है कि जब हम इहदिन सिरातल इस रास्ते पे चलना शुरू करते हैं और फिर हम अल्लाह से मदद मांग रहे हैं, अभी हम चल रहे हैं और मदद मांग रहे हैं, अभी हम महफूज नहीं हुए। अब ये पॉइंट बड़ा सोचने का, इस पे आपने गौर करना है। अभी हम महफूज नहीं हुए, इसलिए अगली आयत में अल्लाह ने क्या कहा, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। अल्लाह तो हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम मुकर्रर किया। अब हमें रोल मॉडल दिखा दिए, ठीक है ना। अब पहले तो एक रास्ता था ना, मांग रहे हैं कि अल्लाह तो हमें एक रास्ता सीधा दिखा दे जो सीधा हमें ले जाए। अब अल्लाह ने हमें रोल मॉडल दिखा कि ये वो मेरे बंदे हैं जिन पर मैंने इनाम मुकर्रर किया। तो जब उन बंदों को हम देखते हैं तो सरे फहरिस्त कौन आता है, अंबिया कराम आते हैं ना। तो मुझे बताएं, अंबिया कराम की जो जिंदगी थी, सारे नबियों की जिंदगी कैसी थी बताएं। उस वक्त रेस नहीं था, रेस लगी। उस वक्त रेस नहीं, उस वक्त रेस अल्लाह के लिए लगी हुई थी। अब तो रेस लगी है, मेरा घर बड़ा, मेरी घर में मेरे बच्चे यहाँ चले जाए, मेरे बच्चे वहां चले जाए, अब तो ये रेस लगी है। तो इसमें हम भूल जाते हैं कि मार्च में खड़े होने के लिए हो गया, अल्लाह के सामने खड़े हैं, किसके सामने खड़े हैं। फिर हम हमारे किचन की चीजें आ जाती है, दूसरी चीजें आ जाती है, डिस्ट्रैक्ट कर देती है। तो इसको इंसान में ध्यान में रख के पढ़ना, उसकी वजह से पढ़ना, तो उसके खौफ से डरना। तो इस एक कार्य तो लगता है, लेकिन हम कोशिश करें तो कर सकते हैं। अगर हम कोशिश ही नहीं करें तो कहाँ करें, तो उनके रस्तों पे कैसे चलेंगे। अल्लाह तो कह रहा है ना कि ये वो लोग हैं जिनको मैंने इनाम याफ्ता किया। तो उनकी जिंदगियों में हम देखें तो उनकी जिंदगियों में ऐसा कुछ नहीं था जो हम चाहें कि हम मांगे, था कुछ बताएं। साहबा कराम की जिंदगियों को देख लें, हम जो मांग रहे हैं हमारी चाहत तो कुछ और है। ऐसा ही है ना, हमारी चाहत तो है ही कुछ और, जुबान से हम कुछ और कह रहे हैं, मांग कुछ और रहे हैं। तो हम तो शुरू में ही अल्लाह के आगे खड़े हुए, शुरू में ही हम तो फंस गए ना। हमारी चाहते कुछ और है, ख्यालात कुछ और है, और हमारा दीन कुछ और हमसे डिमांड कर। जब हमें समझ आती है ना इस बात की, तो फिर क्या होता है कि फिर परेशानियां जो है ना वो हल्की हो जाती। आज आप देखिए, हमें जब अगर पता चलता है कि कोई अल्लाह वाला बंदा हमें मिल गया है, हमें किसी अल्लाह वाले का पता चल जाता है, मैं लिखती हूँ। तो अगर मैं किसी के बारे में लिखूं, किसी का कुछ बता दूं, तो लोगों के मुझे इस कदर मैसेजेस आते हैं कि हमें बस उनका फोन नंबर दे दें। अच्छा, अब वो अगर तो किसी कोई फोन नंबर देने की इजाजत दे दे तो कुछ अर्से बाद वो अपना फोन ही बदल लेता है। तो अव्वल तो लोग देते ही नहीं है, हम लोग देते ही नहीं है किसी को नंबर। तो मतलब कि मकसद क्या होता है कि हमें कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिससे हम सारी की सारी अपनी जो है ना दुआएं वो पूरी करवा लें। हमें हमारा यही मकसद है ना। अब दुआ असल में हमें पूरी क्या करवानी है, असल दुआ क्या है जो हमें मांगनी है, जिस जो हमारी बहुत ज्यादा, यानी जिसके ऊपर जान फंसी हुई है, जो ना मिली, जो दुआ पूरी ना हुई, तो हमारी हमेशा की जिंदगी दांव पर लग गई। अल्लाह ने कुरान में कहा है ना कि अपने आप को और अपने घर वाले को कुव्वत वाली, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। असल तो उस आखरत का खौफ और ईमान के ऊपर वापसी का खौफ और ईमान की सलामती का खौफ। असल दुआ तो ये है ना कि अल्लाह वैसा हमें मिल जाए कि जो हमें पकड़ के इस हदायत के रास्ते पे अपने साथ साथ ले जाए। सूरह फातिहा यही कह रही है ना। यहाँ पर हम कहते हैं कि देखें, मैं तो खुद ही कुरान पढ़ लूंगी, मैं तो खुद ही सारा कुछ पढ़ के जो है ना वो अपनी बख्शिश का सामान कर लूंगी। लेकिन अल्लाह ने हमें क्या कहा, यहाँ हमें मांगना क्या सिखाया। मोमिन की तरबियत किस अंदाज में की जा रही है, मोमिन की तरबियत यहाँ इस अंदाज में की जा रही है कि यहाँ पर सारा नून जबर ना, अरबी में कहते हैं हमको, हम का सीगा है, वाहद का सीगा नहीं है। उम्मत मुस्लिमा एक जज्बे वाहद की तरह है। इसके एक हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म जो है ना वो तड़पता है। इसका ये मिसाल है इसकी, यानी
जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया वो सारे के सारे एक जज्बे वाहिद की तरह। अब वो सब जब अल्लाह के आगे खड़े हुए हैं तो अल्लाह के आगे खड़े होकर क्या दुआ मांगते हैं कि इया का नाबुदु, नून जबर ना आ गया, हम सब इबादत करते हैं तेरी, व इया का नस्ताईन, और हम सब तुझसे मदद चाहते हैं। अब इसमें मैं और आप कुछ फर्क नहीं है, हम सब हैं। अब देखें कि इमाम काबा भी वही दुआ मांग रहा है, वक्त का नबी भी वही दुआ मांग रहा है, और एक सहाबी और एक कम पढ़ा लिखा अकाबरी, गरीब अमीर, सबकी यही दुआ, सबकी यही दुआ। इट मीन्स कि ये दुआ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता दिखा और तू हमारी इसमें मदद कर। फिर उसके बाद अल्लाह ने क्या कहा कि तू हमें उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तूने नाम मुकर्रर किया, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ना कि उन लोगों के रास्ते पर जिन पे तू गजबनाक हुआ। अब यहाँ पर देखें कि दोनों रास्ते में पैरेलल दिखा दिया। गजबनाक अल्लाह किन पे हुआ था, अगर हम देखें तो जिन पे गजबनाक हुआ था फिरौन, आता है ना, अबू जहल, बड़े बड़े नाम। अब उनकी लाइफ को हम देखें, उनकी लाइफ में क्या था, दुनिया, दुनिया थी ना, माल और हुक्मरानी। आज हम सब की अगर हम गौर करें तो हम सब भी इसी दौड़ में लगे हैं। भूल गए हम कि हमने वापस जाना। हमारी दौड़ यही, हमने अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी किसके लिए, इस दुनिया के लिए, इन बच्चों के लिए। भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। अल्लाह ताला क्या कहता है, अल्लाह को मुत्ता, गफलत में डाल दिया तुमको कसरत की ख्वाहिश ने, हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रों की जियारत कर ली। और आप देखिए कि वक्त किसी को नहीं पता कि कब बुलावे का आ जाए, किसके पीछे मौत का कितना वक्त रह गया हमें नहीं पता, कब तक हमारी सेहत है नहीं पता, और कब तक तो मोहलत है। कितना शुक्र है कि ये मोहलत अल्लाह ने हमें दी है कि हमारे पास अभी वक्त है कि हम सीख सकते हैं दीन को, और हम इस चीज को समझ सकते हैं कि हम जिसको अल्लाह ने कहा लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, कितनी खूबसूरत आयत है इंसान, ये कि ये इंसान मेरी बेहतरीन तखलीक, अल्लाह की तखलीक का कहते हैं ना, अल्लाह की सन्नाई का नुक्ता रूज, खूबसूरत तरीन तखलीक है अल्लाह की इंसान। और इतनी खूबसूरत तखलीक जो है वो किस दौड़ में है, और फिर सबसे खूबसूरत उम्मती, सबसे खूबसूरत उम्मत है ये, सबसे खूबसूरत रसूल अल्लाह ने हमें दिया, सबसे खूबसूरत पैगंबर हमें दिया, रहमत लिल आलमीन हमें दिया। और अल्लाह ने कहा ना कि सबसे ज्यादा जो इस उम्मत के जो लोग हैं ये जन्नत में जाए। कितना, कितनी अनायतें हम, हाँ, हम कफारे के बगैर भी हमारी तौबा अल्लाह कबूल, कितनी रहमतें रमजान का महीना हमें दिया, हमें आका अलैहिस्सलाम की जो वो मोहब्बतें हैं अपनी उम्मत के लिए वो दी। इन सब के बावजूद हमारी जो दौड़ है वो क्या है, हम सब दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं अपनी मंजिल का तयन किए बिना। हम सब अपनी जिंदगियों में एक टारगेट बना लेते हैं ना, अब मैंने भी आपने भी हम सब ने बनाए हुए हैं टारगेट कि मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है। हमें बनाने चाहिए, हमें अच्छी बात है बनाने, लेकिन उन तमाम जो टारगेट हमने रखे हैं अपनी जिंदगी में उसमें हमने अपने आप को कहाँ रखा है। क्योंकि अल्लाह के साथ जो मेरा ताल्लुक, मेरी जात का ताल्लुक है, वो उसका हिसाब मैंने देना है। जब हमने कब्र में जाना है तो हमने तन्हा जाना है, ठीक है ना। तो हम, हमारे ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बहसीयत उम्मती, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमने अपने अपनी भी इस्लाह करनी है, और अपनी इस्लाह के बाद आगे जो दीन सीखा उसको फैलाने की कोशिश करनी है, वक्त लगाना है दीन के ऊपर, मेहनत करनी है दीन के ऊपर। तो अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे, तौफीक दे कि हम दीन को सही मानों में समझ सके। दावाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो थोड़ी सी बातें मैंने आप लोगों के साथ की, उन बातों को आप लोगों ने यकीनन समझा, आप लोगों के अंदर वो उतरी, और आप लोग कुछ पूछना चाहें इसी टॉपिक के हवाले से, कोई बात करना चाहे तो जरूर शेयर करें। जो पता चलता है कि
اللہ تعالیٰ کی میرے گناہ بھاگ کے مشکل وقت میں یہاں کی شکر بھی اتنا سب سے بڑا شکر بھی وہ ہوتا ہے جب آپ جب ہم بیماری میں مشکل وقت میں تو اللہ کا شکر ہم پنجابی میں کہتے ہیں جو تیری مرضی رضا اللہ کی تو آٹومیٹک ہمارے اندر کہتے ہیں وہ رب جو ہے اتنا وہ سفر اور اتنی خاص کر دیتا ہے کیونکہ ہمیں اللہ کلام پڑھنا چاہیے اگر ہم لوگ دو منٹ میں رب کی رضا کو راضی رکھ کے محرمات سے اپنے رب کے آگے خود کی بات کہتے ہوتا ہے تو بات پھر پیچھے جائے گا ورنہ ہم کیا بات ہوگی السلام علیکم. سب سے پہلے معذرت لے جانے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اج سس متراں دیور دے کیوں جندڑی اداس گنیری لوں لوں وچ شوق چنگے اج نینا ساریاں کیوں چڑیاں مکھ چن بدن شاہ شانی وت چمک دی لات نورانی مکھ چن بدن شاہ شانی مت چمک دی لات نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیاں نے مد پریاں ایس صورت نو میں جان جانا کھان کہ جان جہان کھان ایس صورت نو میں جانا کھان جانا کھان کہ جان جہان کھان سچ آقا تے رب
निमशाना का सच आखा तेरा निमशाना खा के जिस शान तो शाना ने सब बनिया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह माज मनता मा सनका किते मेरे अली किते तेरी सना किते मेरे अली किते तेरी सना ए मुश्ताक अखियां किते जा अड़ियां अज सित मित्रा दिवदे क्यों जिंदड़ी उदास गने लू लू विच शौक चंगे अज नैना लाया क्यों चलिया सलाम सलाम पढ़ना जी जी ठंड भाई अच्छा मैंने वैसे ना कम कर दी मैं एक बात तेजी से कहना चाहती हूँ अगर सबको पता है सबको सबसे के अंदर ये अल्हम्दुलिल्लाह तो इस किताब का नाम है तजल्लियात तो वो डाउनलोड करके मैं पास डेली पढ़ूंगी जब भी मिले थोड़ा सा एक पेज पढ़ इंशाल्लाह तजल्लियात फिर मैं बोलूँ तो हयाते तक बड़ी के आप चलिए हमें और ज्यादा उसे जो वाक़यात हैं उसके बाद भी कोई आज़ादी है जैसे हम कर सकते हैं तो भी नहीं कर सकते तो जब नया नया इस्लाम आया था जैसे बाबा पे तो हमारे इस्लाम में सबसे पहले तो जिनको दोनों टांगों से पकड़ दी एक इधर मुझे मारे गए तो उन्होंने दीन के लिए इतना कुछ किया हमें तो उसके लिए तो इस तरह की जिंदगी हमें नबी पाक मैंने पढ़ी है मेरा दिल करता है कि अल्लाह पाक सब कुछ ठीक से नबी पाक पढ़ी उनकी जिंदगी में इतना मजा आएगा आपको इंशाल्लाह समझ भी आएगी जी अजान भी होने वाली है क्या बेहतर है दुआ टाइम कितना टाइम आपको 3-4 मिनट पढ़ना क्या चाहिए दुआ जो है मैं कह रही हूँ सलाम और दुआ फिर हम नमाज की बात करें जैसे क्या मैं वही कह रही थी फिर बाद में रखूँ नमाज की बात करूँ पढ़ लेंगे या दुआ होती है नमाज अजान के बाद भी हाँ ठीक है मेरे ख्याल में करके ठीक मिल गईया गलियां मदीने दिया मिल गईया गलियां मदीने दिया असा सारी खुदाई की करनी
ਮਹਿਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਣਾਵੇ ਮਹਿਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਣਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਣਾਣੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਗਲੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਨੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਨੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਆਸਾ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸਾਂ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਗਲੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਅਮਲਾ ਨੇ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਗਾ ਕਮ ਆਉਣਾ ਹੈ